بولی جاتی ہیں۔ ہمیں یہاں پہ اس خطے کو کبھی بھی نہ تو تسلیم کیا گیا، نہ اس کا وہ حق دیا گیا کہ جس کے یہ مستحق ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جنوبی پنجاب میں ایک محرومی پائی جاتی ہے اپر پنجاب کی نسبتاً، تو وہ محرومی کیسے دور ہوگی وہ ہمیں دیکھنا ہے، اس کا حل تلاش کرنا ہے تاکہ یہاں کی محرومی دور ہو اور ہم جو ہے پوری طریقے سے یہ محسوس کر سکیں کہ ہم بھی پنجاب کا ایک حصہ ہیں اور ہمارے بھی حقوق وہی ہیں جو اپر پنجاب کے ہیں، وہی حقوق ہمارے جنوبی پنجاب کے ہیں۔ اور میں جس میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے تو کوشش یہی ہوئی ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایسے ہی فنڈز ملیں، وہی حصہ ملے کہ جو دوسرے اپر پنجاب کے لوگوں کو ملتا ہے، اسی ریشو سے ہمارے جنوبی پنجاب کو بھی جو ہے حصہ بھی ملنا چاہیے، نمائندگی بھی ملنی چاہیے۔ اور اس میں پچھلی جو حکومت تھی ہماری جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اس میں الحمدللہ ملتان میں بڑے کام ہوئے ہیں ترقیاتی، آپ گن سکتے ہیں، بھاولپور میں بڑے کام ہوئے ہیں، ڈیرہ غازی خان میں بڑے کام ہوئے ہیں اور دوسرے جو اضلاع ہیں ان میں بھی بڑے کام ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ امید یہ کرتا ہوں کہ یہ محرومی جو رہ گئی ہے یہ بھی انشاءاللہ اس دور میں ضرور اس پہ دیکھا جائے گا اور اس کو حل کیا جائے گا۔ شیخ صاحب جی میں جناب اور نے گل کی تھی کہ بہت سارے کام پچھلی حکومت یا ای دور حکومت ہوندے بھی پین اور ہون دی توقع بھی ہے، لیکن اتھائی ایک ملتان دے لوگاں دا ای پٹی دے لوگاں دا ایک مطالبہ بھی ہے تورے نال کہ اگر اساں بہاڑی روڈ دی گل کرنے ہیں تے ملتان بہاڑی چوک تو گھن کے پاک پتن تک روڈ قاتل روڈ ہے، ایویں اگر اساں مظفر گڑھ تو گل کرنے ہیں تے علی پور تک جڑا روڈ ہے بالکل ناقے سے، آیا کیا ایندے تے آواز کیوں نہیں بلند کیتی گئی؟ دیکھو جی، جو بہاڑی روڈ آپ بتا رہے ہیں وہ تو اپروو ہو گئی ہے، وہ تو آج 3-4 دن ہو گئے ہیں، وہ تو الحمدللہ انہوں نے ہماری بات تسلیم کر لی ہے اور وہ روڈ اب بننے جا رہی ہے، نئی روڈ ڈبل وے ایکسپریس وے بنے گی ساری ملتان سے لے کے اور بہاڑی تک، یہ تو بات کلیئر ہے۔ اور باقی علی پور اور ادھر والی روڈز جو ہیں انشاءاللہ تعالی وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی آواز اٹھائیں گے اور ہم بھی جنوبی پنجاب کے ہونے کے حوالے سے ہم بھی آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ عنقریب جب وزیر اعلیٰ صاحبہ ملتان آئیں گی تو ہم خصوصاً ملتان اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی یہاں کی محرومیاں ہیں ان کا ذکر کریں گے اور بلکہ ان کو منوائیں گے اور بلکہ ان کو کہیں گے کہ بھی ہمیں ہمارا حق ضرور ملنا چاہیے۔ شیخ صاحب یہ علاقے تو یہ خطے تو جن نال تواڈی ساڈی جڑت ہے، یہ خطے دے لوگاں دی بڑے عرصے تو ایک جد و جہد ہے الگ صوبے دی، آپ یہ کو کیویں دے دے کہ آیا کیا واقعی یہ خطے دی ضرورت ہے صوبہ اگر یہ لوگ منگ دیں تو ان دی وجہ کیا ہے، کیوں منگ دیں؟ دیکھیں جی، صوبہ ہماری ضرورت ہے جنوبی پنجاب کی اور انتظامی لحاظ سے جنوبی پنجاب صوبہ ضرور ہونا چاہیے، نہ کہ لسانی اس میں، کیونکہ اگر یہاں جب صوبہ ہوگا تو ہماری شناخت اور ہماری آواز جو ہے وہ صحیح معنوں میں وہاں تک پہنچے گی جہاں ان سے پہنچنا چاہیے۔ یہاں ایسا ٹیلنٹ موجود ہے، یہاں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن سے ہم بہت زیادہ ریونیو حاصل کر سکتے ہیں، بہت زیادہ یہاں پہ ایک زرخیز مٹی ہے، یہاں کے ذہن، یہاں کی تعلیم، یہاں لوگوں کا ویژن، یہاں کی ثقافت اتنی مضبوط ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ کسی اور علاقے کی نہیں ہے جتنی ہمارے جنوبی پنجاب کی ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ سے، آج نہیں میں یہ بات کر رہا، میں جب MNA تھا اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جنوبی پنجاب ایک صوبہ ہونا چاہیے۔ اور اس پہ آپ اٹھا کے دیکھیں، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی میں بھی یہ واحد جماعت تھی مسلم لیگ نون جنہوں نے قرارداد پیش کی اور وہ قرارداد منظور ہوئی کہ بھئی یہ صوبہ بننا چاہیے، لیکن شومیہ قسمت
और जमातें जो थी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उन जमातों का, उन्होंने बैकआउट किया, उन्होंने साथ नहीं दिया। जाहिर है इन्हें सब जमातों को साथ देना चाहिए, और सब साथ देंगे तो मेजॉरिटी होगी, तो फिर सूबा बनेगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून कभी भी सूबा बनाने के इस इख्तियार से कभी पीछे नहीं हटी। शेख साहब, जिवें कि असां सूबे के हवाले नाल गल करेंदे पे ऐसे, क्योंकि ढेर सारे मसाइल ऐसे हैं जिहड़े सूबा बनना जरूरी है। सूबे का कोई भी ना होवे, वो हुकूमत की मर्जी है, तुहाडे जे नुमाइंदियां दी मर्जी है, क्योंकि तुहाडी मुशावरत नाल होना है। लेकिन असां जदन भी कहीं भी नुमाइंदे नाल गल करने की कोशिश की है, बेशक वो नून लीग दा होवे या पीटीआई दा होवे, पीपल्स पार्टी दा होवे, हर नुमाइंदे दा ये दावा और चैलेंज है जी असां सूबे ते काम करेंदे पे हैं। जनाब और तफसीलां दी ते गल की। मकसद मेरा सवाल थोड़े जिहा वाल उठी खड़ा है कि सूबा जिहड़ा है ये जरूरी क्यों मंगदे ने, इहदे विच किहड़ियां ऐसियां मुश्किलात हैं तुहाको या इत्थों दे लोगां को जिहदे वास्ते वो आखदे जी सारे वसाइल या सारियां चीज़ां साकू इत्थां ही मिलनियां चाहिए? देखिए जी, यहां हमेशा लोगों ने लॉलीपॉप दिया है सूबा पंजाब के लोगों को, और अपना उल्लू सीधा किया है बहुत सारी जमातों ने जी जी कि हम सूबा बनाएंगे। लोग उनके पीछे लग गए, सूबा बनाया नहीं। कोई भी पार्टी आई, अगर कुछ काम किया है तो मुस्लिम लीग नून ने किया है। बाकी किसी जमात ने कभी भी सीरियस होके इस चीज को वो नहीं किया। अभी भी मैं कहता हूं, चाहे वो पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है या और जमातें हैं, सब इकट्ठे होके इसको एक मूव चलाएं, इसको एक करारदाद पेश करें, एक बिल पेश करें असेंबली में। उस वक्त पता चल जाएगा कि कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता। तो इसमें मैं यही समझता हूं कि हमारी सारी जमातों को मुखलिस होना पड़ेगा इसको सूबा बनाने के लिए। अगर वो मुखलिस होंगे तो ये जरूर सूबा बनेगा। सर, इलेक्शन तो पहले नून लीग के उत्ते बड़ी सारियां लोगों की तवक्कुआत हैं, और उनके ते मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ने लोगों को, क्योंकि गरीब आवाम के जिहड़े मसाइल होंदे ने वो हल होने जरूरी। जब साडा गरीब खुशहाल हो सी तो यकीनन वाल साडे खिते दे विच खुशहाली आ सी। आया क्या नून लीग ने जिहड़े गरीब आवाम दे नाल कीते वादे वो पूरे करने विच कामयाब साबित है या प्लानिंग के चल है? देखिए जी, इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 2018 से पहले जब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, उस वक्त हालात इंतहाई बेहतर थे। हर बंदा सुकून की नींद में था, कारोबार भी थे, महंगाई भी नहीं थी, पेट्रोल भी सही था, बिजली भी सही थी, गैस भी सही थी, रोजगार भी था, हर चीज अपनी जगह पे बेहतरीन चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसे शख्स की हुकूमत आ गई कि जिसने लोगों के दिमाग खराब कर दिए और ये दावा किया कि मैं इससे भी अच्छे हालात कर दूंगा। लोग ये सोचने लग गए कि यार ये हालात तो हैं तो ठीक, लेकिन एक बंदा कह रहा है ये जो ठीक है इससे भी अच्छे हो जाएंगे। ये पेट्रोल अगर 150 रुपए है तो मैं तो 40 रुपए पे ले आऊंगा। जाहिर है बंदे की एक ज़हनियत है ना, वो बंदा कहता है कि यार इससे भी बेहतर हमें एक हालात मिल रहे हैं तो क्यों ना हम इसका साथ दें। तो वो साथ दिया या नहीं दिया, बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है कि क्या हुआ। वो उनकी हुकूमत आ गई, उन्होंने 4.25 साल में इस पाकिस्तान का जो हशर किया है, जो खिलवाड़ किया है इस मुल्क का, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। इन्होंने आते ही पहले ही 6 महीने में वो जो मेहनत थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की, वो आते ही 6 महीने में उसका बेड़ा गर्क कर दिया और कीमतें आसमान तक पहुंच गई। पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, महंगाई की शरह भी चली गई, हर चीज डबल हो गई। और 4 सालों में जो उन्होंने हाल किया, हमें उस नहज पे पहुंचा दिया या तो ये मुल्क हम उनके आगे गिरवी रख दें या फिर हम इस मुल्क को जो है वो अपना हम फाके करने पे मजबूर हो जाए। ये तो मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे कि उन्होंने अपनी मकबूलियत की कुर्बानी दी और उस जालिम और जाबिर शख्स से इस हुकूमत को वापस लिया।
अगर वो हुकूमत उस वक्त उससे नहीं वापस ली जाती तो आज हम अगर ये इस वक्त कह रहे हैं ना 250-300 या कितने रुपए पेट्रोल और ये और वो, तो आज हम 600 रुपए में पेट्रोल ले रहे होते अगर ये उस वक्त हुकूमत उससे ना ली जाती वापस। क्यों कि उसने ऐसे ऐसे माहदे किए जो ये नहीं देखा कि भाई ये बाद में ये कौन पे करेगा और अवाम के साथ क्या बीतेगी। उसने बेदरेग जो है ना इस मुल्क को जो है ना अपने मुफाद की खातिर उस नहज पे ले गया कि जब ये जहां या तो मुल्क टूट जाता या ये मुल्क गिरवी रखा जाता। तो मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को पेश किया क्योंकि वो खालिक जमात है और उनके दिल में दर्द है अवाम का भी और इस मुल्क का भी। उन्होंने कुर्बानी दे के इस मुल्क को हासिल किया और अब आपके जवाब की तरफ कि अब जब इस मुल्क को उनके पास जिन हालात में मिला था अब वो दिन रात कोशिशें कर रहे हैं कि दोबारा इस मुल्क के हालात ठीक हो जाए, लेकिन वो इस हद तक खराब हो चुके थे कि हम 40 साल पीछे जा चुके थे। अब ठीक होने में जाहिर है कोई जादू का चिराग तो किसी पे है नहीं। अभी 4-6 महीने हुए हैं, इसमें भी जिस अंदाज में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और बाकी हमारी पोलिटिशियन जमातें जो मेहनत कर रही हैं कि किसी तरीके से इस अवाम को भी रिलीफ मिले। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अपने पेट पे पत्थर रख के पंजाब हुकूमत ने अवाम को बिजली में रिलीफ दिया है, वरना हम तो IMF के हाथों बिके हुए हैं। जो वो मुआहदे कर गए हमें हम पाबंद है, हमें पूरे करने हैं वो। अब उनको उनसे निकलने के लिए उसको बेहतर करने के लिए भरपूर हिकमत अमली से काम लिया जा रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द इन बुरहानों से ये मुल्क जरूर निकलेगा और सही मंजिल की तरफ जरूर जाएगा। लेकिन उसके लिए अवाम को फिर दोबारा सब्र और मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। इतना सौखा नहीं है अपना वो जो 40 साल हम पीछे चले गए हैं, हमें दोबारा उसी मंजिल 2018 से पहले वाली मंजिल पे आने के लिए हमें कुछ टाइम भी लगेगा और हमें कुर्बानी भी देनी होगी। शेख साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बस आखिरी एक या दो सवाल हैं सारे प्रोग्राम दे। जिवें कि तुसां गल कीती, असां लाहौर, कराची, इस्लामाबाद को अगर देते हैं तो उत्थां एक यानी टैक्सटाइल मौजूद हैं, उत्थां मिलेज मौजूद हैं। जेड़ी धरती दे नाल साडा तुहाडा वास्ता है यह है ज़राअत। इत्थां किसान जिहड़ा है, किसान हमेशा हर मुल्क दे विच रीढ़ दी हड्डी दी मानत होंदा है। मजदूर है या किसान है, जिवें कि तुसां खुद हुणे गल कर गए। इस टाइम सब तो ज्यादा जिहड़ा साडे इह खित्ते दे विच मसला है वो है बिजली दे बिल्लां दा। यानी बिजली दे बिल्लां दे उत्ते किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। ते आया क्या पंजाब हुकूमत इहदे ते कोई सबसिडी देवे ताकि कम से कम हर मजदूर, हर अमीर गरीब इहदे ते बिल भर सके, क्योंकि इहदे नाल साडे इह खित्ते दे विच जराइम क्राइम दी रेशो जिहड़ी वधदी पई। देखिए मैंने अभी पहले ही बताया, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे इस मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है। हमें ज़राअत की तरफ फोकस करना पड़ेगा। हमें ज़राअत के लिए भरपूर तरीके से मेहनत काम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक वाहिद रास्ता है कि जो हमें बहरानों से निकाल सकता है। अगर हम इस पे हमने पूरा फोकस कर दिया, जितनी जमीन पड़ी हुई है बंजर गैर आबाद, ये हमें देनी होगी, सबको, गरीब किसानों को दे देंगे, लेकिन वहां से आमदनी तो पैदा होगी ना। और ये मेरा ख्याल है कि अगले 2-4 दिनों में इस पे अमल दरामद भी हो रहा है। लाखों एकड़ जमीन जो पड़ी हुई है वो गरीब किसानों को अगर मिल जाए तो वहां जो खाली पड़ी रहने से बेहतर नहीं है कि भाई